Welcome back in our online class. Today is the EVS class and today we are going to discuss lesson 9 plants and trees for all. Trees and plants are very valuable part of the environment on the earth. Environment में उसका जो plants है वो बहुत ही ज़्यादा useful and important part है. ये environment को क्या कहते हैं, clean रखने में भी help करते हैं. Roots of the tree hold the soil from getting eroded by the wind and the water. A plant have different types of parts like roots. Roots is the underground part and above the soil shoot system. On the shoot system many parts like stem, leaves, branches, flower, fruits they all are present in shoot system. तो जो roots होते हैं plants के उसका क्या होता है, वो plants को ground से hold करके रखता है. soil के साथ वो बहुत बॉन्डिंग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं ताकि वो हवा विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू इजीली इरोड नहीं हो जाए, इजीली अपरूटेड नहीं हो जाए. इसलिए जो रूट्स होती है प्लांट की वो क्या करती है, सॉइल के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं. ट्रीज प्रोटेक्ट आवर होम फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग विंड एंड प्रोवाइड शेड इन हॉट वेदर. द plant is very useful for human also. They provide us very valuable things and many things. They provide us shade also in very hot weather. They also provide many species of animal with habitat, nesting space, protection from enemies. और जो birds होते हैं उनके लिए plants बहुत important होते हैं क्योंकि जो most of birds होते हैं उनके habitat place क्या होता है, habitat का meaning होता है dwelling, रहने का place. तो जो most of bird होते हैं उनके रहने का place होता है tree. अपना nest वो tree पे बनाते हैं और जो tree होते हैं उनको enemies से भी protection provide करते हैं. In forest, the fallen leaves decompose the supporting plants like mushroom, worms, insect and other animals. और जो बड़े-बड़े forest होते हैं उनमें जो fallen leaves होते हैं उनका decompose होता है. Decompose का meaning होता है जो भी biodegradable substance होता है like plant waste, animal waste, वो slowly microorganisms क्या करते हैं उनको, वो जो कुछ ऐसे microorganisms होते हैं saprophyte जो ना decaying और rotted material होता है उसको decompose करके अपना food derive करते हैं. तो जो ये fallen leaves होती है उसका जो decompose होता है वो किसको सपोर्टिंग करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट. इसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है. और जो छोटे छोटे मशरूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वर्म्स, इंसेक्ट, अदर एनिमल को सपोर्ट करेगा. मैनी एनिमल्स ईट द फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स, सैप और इवन द वुड ऑफ ट्रीज. और बहुत से एनिमल फ्रूट्स के लिए भी प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपना फूड, क्योंकि बहुत से एनिमल सीड्स लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं एज ए फूड. Trees and plant provide us with food in the form of fruits, grain, vegetable and nuts. We get many things from plant like medicines. Some types of medicines also made from these trees and vegetable, oil. These all important things we are getting from this plant. Plant provide us valuable things. Some neighborhood plant and trees. Our neighborhood have many trees and plants. We can see many different types of trees and trees and plants around us. The banyan tree is the national tree of our India. Which is our national tree? Our national tree of India is a banyan tree. It is huge and its branches spread out extensively. देखो ये जो banyan tree आपने देखा तो ये बहुत बड़ा ट्री होता है, बहुत फैला हुआ होता है. It has heart shaped leaves. और जो इसकी लीव्स होती है वो कैसे होती है, हार्ट शेप में होती है ना. जो banyan tree की लीव्स कैसे होती है, इस शेप में होती है इस शेप में. तो ये हार्ट शेप की लीव्स होती है इसकी. द ट्री इज कंसिडर्ड sacred and used for religious ceremony. और इसको अपन ऐसे रिलीजियस, इसका जो banyan tree होता है उसका रिलीजियस पर्पस, इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि कुछ लोग इसकी पूजा भी करते हैं ना. तो इसका जो रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी है, इसकी रिलीजियस सेरेमनी भी होती है. बहुत सारे ऐसे फास्ट होते हैं जिसमें जो लेडीज होती है वो इसको वर्शिप करती है, इसकी पूजा करती है, इसके अराउंड राउंड लगाती है. देखा है ना आपने. द कीकर इज ए स्मॉल थॉर्नी ट्री. इट हैज़ येलो एंड वन टाइप ऑफ अनदर प्लांट कीकर. तो जो कीकर होता है उसकी कैसे ट्री होता है, थॉर्नी ट्री होता है. उसकी बॉडी पे बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं. जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थॉर्न स्पाइक्स होते हैं. इट हैज़ येलो राउंड शेप फ्लावर्स. इन विलेज इट ब्रांच आर यूज फॉर मेकिंग फेंस अराउंड हाउसेज एंड द लीव्स सर्व एज फोडर फॉर गॉड्स. जो कीकर प्लांट होता है वो भी देखो, जो कीकर प्लांट की जो लीव्स होगी, उसकी जो ब्रांच होगी उसको तो कैसे यूज करेंगे, फेंसिंग करने के लिए. जो हाउस होता है
हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ जो गांव होते हैं उसमें अभी भी फेंसिंग किससे की जाती है, कीकर प्लांट की ब्रांच से की जाती है, ताकि कोई भी कोई भी एनिमल उसके अंदर एंटर नहीं करे, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कीकर प्लांट की ब्रांच एज ए फेंसिंग यूज की जाती है। और जो इसकी लीव्स होती है वो कौन यूज करता है, एज ए फोडर फॉर गॉड्स। जो गॉड्स होते हैं वो घास उसके जो खाने में इसकी लीव्स भी यूज होती है कीकर प्लांट की। द मैंगो ट्री इज अनदर कॉमन ट्री। द मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ आवर कंट्री। नेशनल ट्री इज अ banyan and national fruit is a mango. The leaves of the tree are used for religious ceremony. और जो मैंगो ट्री होता है उसकी लीव्स होती है, उसके बहुत सारे रिलीजियस पर्पज भी हो, बहुत सारे रिलीजियस जो सेरेमनी होती है, रिचुअल होती है, उसमें भी यूज होती है। तो ये सारी क्या अपने नेबरहुड प्लांट है। अपने नेबरहुड में वी कैन सी मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन अवर नेबरहुड लाइक नीम, पीपल, दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। द जामुन एंड बेर ट्रीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो जामुन और बेर होते हैं उनके प्लांट्स हर जगह होते हैं प्लांट्स में। When these trees are laden with ripe fruits, children love gathering the fruits that fall on the ground. जैसे उनके फ्रूट्स राइप होते हैं तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, उनके लेने के लिए उनके नीचे आके खड़े रहते हैं। उनके जो राइपन फ्रूट्स होते हैं उनका सबको शौक होता है, जामुन का, बेर का। द नीम इज अनदर वंडरफुल ट्री। द लीव्स, फ्रूट्स, bark एंड sap of the neem tree have medicinal value. जो बहुत से ऐसे मेडिसिन हैं जिसको बनाने में किसका होता है, नीम। जो नीम और तुलसी होता है, तो तुलसी जो प्लांट्स होता है बेसिक, तो नीम और तुलसी का मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये बहुत सारी दवाइयों में भी यूज होता है। डोमेस्टिक प्लांट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक प्लांट। व्हाट इज अ डोमेस्टिक प्लांट? वी ग्रो ट्रीज एंड प्लांट इन होम्स और गार्डन। ऐसे प्लांट्स जिनको वी कैन ग्रो इन अवर होम्स एंड अवर गार्डन, दिस आर कॉल्ड डोमेस्टिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनको अपन अपने घर में या गार्डन में ग्रो कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं। द फ्रूट ट्रीज ग्रोन कॉमनली इन होम्स इंक्लूड पपाया, गवावा, मैंगो, कोकोनट, बनाना, चेरी एंड प्लम्स। दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। पीपल आल्सो ग्रो हर्ब्स लाइक कॉरिएंडर। और कुछ अपने गार्डन में हर्ब्स को भी देखो, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट, हर्ब्स। हर्ब्स इज अ वेरी स्मॉल प्लांट लाइक ग्रास एंड कॉरिएंडर। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो भी ग्रीन लीफी स्टेम होता है और ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद सेकेंड टर्म में आता है श्रब्स। श्रब्स है वो वुडी स्टेम बट इट्स स्टेम इज वेरी वीक, पर उसका स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है। लास्ट होता है ट्री जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो सम पीपल आल्सो ग्रो हर्ब्स लाइक कॉरिएंडर, तुलसी एंड मिंट। मिंट मीन्स पुदीना। These all are used for cooking and treating some illness. Some people grow fruit trees, orchids. These are privately owned and the orchidist is responsible for taking care of the tree. जो orchids होते हैं, बड़े बड़े जो बगीचे होते हैं, फ्रूट्स के बगीचे, तो उनको क्या वो प्राइवेटली ऑन होते हैं, जो किसी के होते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑनर होगा उसका। तो जो उसका ऑनर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्किडिस्ट होगा। Some plants and trees add beauty to our homes and garden. These are called ornamental plants. देखो किसी का अलग, सब प्लांट्स के अलग अलग यूज है। कुछ प्लांट्स अपन क्या करने के लिए लगाते हैं, उसकी गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए लगाते हैं, उसको ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन के लिए भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो किया जाता है, तो उनको बोलते हैं ornamental plants. While इसके बाद में देखो डोमेस्टिक प्लांट, वी कैन ग्रो दिस प्लांट्स इन अवर होम, इन अवर गार्डन, लाइक मैनी fruits trees and these some types of herbs like coriander, mint, tulsi. These all are different types of domestic plants. Now we will discuss about wild plants. Small plants that grow on their own in our garden and lawns are wild plants. Sometimes some types of plants they grow automatically with our plants. These are called weeds. जो देखो कभी कभी क्या होता है, जो कुछ ऐसे प्लांट जो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाते हैं, ऑटोमेटिक अपने गार्डन में। बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, जब रेनी सीजन होती है तो उस टाइम बहुत सारी वीड्स हो जाती हैं जो ऑटोमेटिक ग्रो करते हैं, ऑटोमेटिक उग आते हैं। दिस आर कॉल्ड वीड्स, और उनको जो क्या बोलते हैं, वीड्स। दिस कैन हार्म एंड इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक प्लांट्स दैट वी ग्रो, बट समटाइम्स दिस वीड्स आर हार्मफुल फॉर अवर डोमेस्टिक प्लांट्स बिकॉज people use medicines to stop their growth or remove them from their roots. देखो इसके लिए डिफरेंट तरीके, बाय द डिफरेंट मेथड वी कैन रिमूव दिस weeds
some people use medicines because of these chemicals they can't grow. The Congress grass is an example of an unwanted plant. देखो you can see around when rainy season you can see one type of grass around the Congress grass. This is a unwanted plant. We can say this is a type of weed. It is commonly found along roadside and railway tracks. जो रोड साइड होता है उसकी भी दोनों तरफ अपन देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे वीड्स होते हैं, कांग्रेस ग्रास लगी हुई होती है. दिस ग्रास कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम और इस वीड्स की वजह से ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है. ह्यूमन में वन प्रॉब्लम होती है स्किन प्रॉब्लम. डैंडलियन इज ए कॉमन गार्डन वीड्स और जो अपने गार्डन होता है उसमें जो वीड्स आते हैं उसमें सबसे कॉमन है डैंडलियन. इट पुश असाइड ग्रास एंड अदर प्लांट. इट आल्सो ड्रेन आउट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग प्लांट्स. जो डैंडलियंस होता है, डैंडलियन क्या करता है, डैंडलियन वीड्स होती है वो जो मैन प्लांट्स होते हैं या जो डोमेस्टिक प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक लेते हैं. कैसे रोक लेते हैं, जो सारा वाटर और सारा न्यूट्रिशन होता है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है जो मैन प्लांट्स होगा या डोमेस्टिक प्लांट्स होगा उसको फूड नहीं मिल पाएगा, उसको वाटर नहीं मिल पाएगा और उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, मुरझाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. तो जो वीड्स होते हैं वो डोमेस्टिक प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि जो सारा न्यूट्रिशन होता है, वाटर होता है, ये खुद ले लेते हैं. क्रीपिंग चार्ली इज ऑफन कॉल्ड ग्राउंड ईवी. इट इज एन एवरग्रीन क्रीपर दैट ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी एरियाज. इट स्प्रेड फास्ट एंड फॉर्म्स थिक मैट्स इन द गार्डन. गार्डन में जो छोटी छोटी घासें लगी होती है वो क्या होता है, क्रीपिंग चार्ली इज ऑफन कॉल्ड ग्राउंड ईवी. जो ग्राउंड ईवी होती है इट इज़ एवरग्रीन क्रीपर. एवरग्रीन लगी रहती है ग्राउंड में जो बहुत जल्दी से स्प्रेड होती है और एक थिक मेट्स जैसे इस गार्डन में पूरा क्या बनाता है, मेट्स जैसा बना लेते हैं. तो छोटी छोटी घास आती है. हाउएवर सम वाइल्ड प्लांट्स आर यूजफुल टू अस. क्रीप जिंजर नाउन इज किकन इन हिंदी. देखो हिंदी में इसको किकन बोलते हैं और इसका ऐसे नाम है क्रीप जिंजर. इज ए नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया. ये इंडिया का एक प्रॉपर प्लांट है. ये भी वीड्स है. क्या नाम है उसका हिंदी में, उसको किकन और क्रीप जिंजर. इट इज़ यूज इन आयुर्वेद टू ट्रीट कोल्ड, फीवर, रैशेस, कफ और इंस्टेंटिनल वॉर्म्स. जो अपने इंस्टेंटाइन में वॉर्म्स होते हैं छोटे छोटे अपनी जो बॉडी जहाँ पे अपना फूड एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं. तो इसके जो प्रोटेक्शन में अपन जो एक टाइप की विंड होती है क्रीप जिंजर उसका यूज होता है बहुत से ट्रीटमेंट में लाइक कोल्ड, फीवर, इन सब के ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है, क्रीप जिंजर का. ब्रिएटिक ग्रोस वाइल्ड अक्रॉस इन इंडिया. इट इज आल्सो यूज्ड इन आयुर्वेद टू ट्रीट वेरियस एलिमेंट्स. टच मी नॉट नाउन है छुई मी इन हिंदी. देखो टच मी नॉट प्लांट्स होता है, जैसे अपन उसकी साइंटिफिक नेम है उसका मिमोसा प्यूडिका. जैसे अपन उसको टच करेंगे तो उसकी जो लीव्स होगी वो बैंड हो जाएंगी. जैसे उस लीव्स को अपन टच करेंगे तो वो क्या करते हैं, जल्दी से बैंड हो जाती हैं. इन सीन ग्रोइंग वाइल्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल. इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी टू कॉम्बैट कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड में जो टच मी प्लांट है उसका एज ए मेडिसिनल यूज़ किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है. रिमेनिंग पोर्शन वी विल डू इन अवर